evening. How are you all? So I hope all of you are well and you guys can see us. Just a second. Let's check. Yeah. So we are all online. So hi guys, how are you all? So in this session we just wanted to make sure कि आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे के अभी आए हैं उनको कुछ डाउट्स हैं, और जो बच्चे हैं जो अब एग्जाम देना चाहते हैं उनको जो डाउट्स हैं, वी केशव सर, दिव्या सर एंड आई वुड टेक दिस सेशन एंड हेल्प यू विद दोज क्वेश्चंस. सो स्टार्ट हो गया. धर्मेंद्र कितने बजे स्टार्ट होगा कि चिंता नहीं है, स्टार्ट हो गया. टेंशन मत लो आप, ठीक है. हाय स्नेहा, हाय धर्मेंद्र, हाय किंजल. सो हाय केशव सर, हाय दिव्या सर, हाउ आर यू गाइज? We are well, ma'am. I'm very good. Yeah. ऑलराइट. सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप डाउट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो. मेरे घर पे भी कोई आ गया और आप पूछ सकते हो एंड वी विल ऑल आंसर द सेम. सो अभी क्लैट खत्म हुआ है. केशव सर, दिव्या सर, एनी थॉट्स दैट यू हैव दैट यू विश टू शेयर विद द स्टूडेंट्स? I think अभी मतलब particularly our students are quite stressed and quite low right now. As I can see, the general vibe है groups का भी, generally classes का भी, where people are not very happy with what they've achieved because they had, I think, aspired for more, they had tried for more. Yeah. But I think that is how it works. That is the game actually. कि ज़्यादा students के साथ ऐसा ही होता है कि they are not able to do as well as they wanted to. Yes. I think it's time to maybe you could say get over it and start preparing again. We always don't get what we want, but we can definitely get it if we, you could say, keep trying for it. So they will get another chance, and they should ideally go for it and get it. I think ideally. Absolutely. It's like the Indian cricket team. There are only 11 places or 11 people who can play for the Indian cricket team. But the only people who are going to play are the people who are going to persevere till the very end. So it's not true कि आपका पहली बार में हो जाएगा, सबका नहीं होता है. But if you will put a determined effort, आपका होगा जरूर. इसकी गारंटी जरूर होती है. और यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है. तो if you are, and मेरे को हमेशा लगता है केशव सर and Kriti ma'am that CLAT is not that tough an exam. It's just that the aspirant is probably not doing all the right things during the year. और लास्ट में शायद थोड़ा लेट आके चीजें समझ में आई. तो अगर समय पे चीजें समझ में आ जाए, समय पे सही चीजें करना स्टार्ट कर दी जाए तो CLAT हो तो सकता है. मतलब having our name in those 500 students who are going to make to tier 1 NLU is not that difficult. Yes, absolutely, Divya. Sir, I agree with you and Keshav sir as well. So one of the students, Kinjal, is asking, I'll be taking a drop to prepare for 2024. I was hoping if you could give a breakup of how one can prepare considering there is more time. So, Keshav, you can take it. Then I think since there is more time, we have to understand कि कई बार हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि we feel कि अभी तो बहुत टाइम है. yes. तो पहले के 4-5-6 महीने थोड़ा सा हम लोग we take it little lightly. Yes. And then we go ahead and फिर ultimately हमको लगता है कि अब कम टाइम है क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग कवर करना है. फिर हम जो गलतियां करते हैं तो हम खुद को we keep regretting the time that we had wasted. So my suggestion would be to basically understand as to where were you wrong in the preparation of the last exam जो CLAT 23 हुआ है. आपने क्या क्या गलतियां की है कि आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है या फिर आपने करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली कवर नहीं किया था या फिर आपने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे सीआर में या लीगल में या मैथ्स में जो भी. अगर वो गलतियां की थी तो मे बी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड डू दैट राइट नाउ. बिकॉज अभी क्या होगा कि सिंस अच्छी बात ये है कि आप अभी से वापस ड्रॉप कर लोगे. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन में जुड़ेंगे कि मतलब दे आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड राइट नाउ और उसके बाद करेंगे. तो उनके पे एक एडवांटेजेस यू कुड से वो एज लेकर चल सकते हो आप कि आई एम ऑलरेडी डन विद व्हाटएवर मिस्टेक्स आई हैड मेड. नाउ आई विल स्टार्ट विद अ वेरी you could say new approach and I will make sure कि मतलब हम इसको properly अब कर पाएं. तो I think maybe this could happen that she can prepare with a very fresh mindset. एक सबसे important चीज ये है कि जो लोग भी वापस prepare करते हैं ना वो पीछे का trauma भूल जाओ आप कि क्या हुआ था उस एग्जाम में. अगर हम वो लेकर आगे चलते रहेंगे कि इस बार भी ये हो गया या फिर प्रॉब्लम हुआ तो आई थिंक वो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको. तो जस्ट prepare like a fresher, just prepare like you have nothing to lose. You have everything to win here. There are so many things that you can do over the period of this year to make yourself better. And I think that would definitely work out in your favor. Yes. Divya, do you have anything to add to this? Yeah, as far as the breakup is concerned, मतलब a lot of people have that inertia कि अब ड्रॉप तो ले लिया है, सोच लिया है, घर पे बात भी हो गई, अब क्या करना है. तो आई विल से कि एक टाइम टेबल बना लो, डेडिकेट अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, अपने आप से बात कर लो कि यार 6 घंटा 8 घंटा
8 घंटे की तो वैसे जरूरत नहीं है अभी इस मौके पर, कि 6 घंटा हम हर दिन पढ़ाई करेंगे, और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 1 घंटा न्यूज़पेपर होगा, कुछ 3 या 4 घंटे की क्लासेस होगी और 1 से 2 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस होगी। तो अगर इतना एक बेसिक बना लिया तो वहां से हम एक इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। Yes. और उसमें धीरे धीरे एज यू विल जॉइन अन अकेडमी या किसी और इंस्टीट्यूशन को, आई एम श्योर वो आपको एक स्ट्रेटेजी देंगे कि इसके बाद किस तरह से ट्विक करनी है। और स्पेशली अगर आप एक ड्रॉपर हो तो यू आर अ मोर एक्सपीरियंस प्लेयर इन द गेम, तो आपको भी अपने प्रिपरेशन को किस तरह से ले जाना है वो पता होगा। लेकिन ब्रेकअप की जहां तक बात है, अभी से एक 6 घंटे के पॉइंट से स्टार्ट करना अच्छा होगा, और न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना अभी से स्टार्ट कर सकते हो आप। Yes, absolutely correct. So I also agree with this. Dropper for droppers, the strategy will be कि अभी आप कॉन्सेप्ट तो आपके थोड़े बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपने एक साल प्रिपरेशन करी है, प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आपने जो भी गलतियाँ आपने इस एग्जाम में करी थी स्पेसिफिकली क्लैट 2023 में, वो गलतियों को आपको मेक श्योर करना है कि आप रिपीट ना करें जो भी आपके आने वाले मॉक्स है। और प्रैक्टिस जैसे जो भी आपके सेक्शंस बेकार थे, जीके था या सीआर था, तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, वो डेली पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लंकेश हु सेइंग मेरी प्रॉब्लम इंग्लिश और मैथ्स है और दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो यार, फ्लैट डज नॉट गिव यू दैट ऑप्शन ना कि सिर्फ मैं इंग्लिश का पेपर नहीं करूंगा, मैथ्स का पेपर नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे को जीके आता है मैं जीके हाँ। करके क्लियर कर लूंगा एग्जाम, ऐसा नहीं होता। फ्लैट और लाइफ जैसी है कि लाइफ में भी कई सारी चीजें हमें मिली, उसको हम बदल नहीं सकते। Yes. मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई है, खाना पड़ेगी, बदल नहीं सकते। तो मतलब वैसे ही अगर इंग्लिश और मैथ क्लैट के एग्जाम में आ रही है तो आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर 1 साल है ना, 1 साल में तो किसी की भी इंग्लिश, किसी का भी मैथ सुधर सकता है। Yes. और पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो करेले की सब्जी की तरह दवाई समझ के खा लेना पड़ेगी। हाँ। वैसे ही इसको दवाई समझ के कि ये हमारी क्लैट प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उसको करना पड़ेगा। आई एम श्योर इंग्लिश और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आपने कोशिश करी ना कुछ दिन लंकेश, तो ओवर टाइम जैसे जैसे क्वेश्चन सही होने लगेंगे, सेल्फ मोटिवेशन आएगा आपको। जो आज जितना कठिन ये लग रहा है उतना कठिन है नहीं। Yes. तो जैसे जैसे, और क्लैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सबसे अच्छा होता है that you are getting direct feedback। जितनी बार क्वेश्चन सही हो रहा है, मोटिवेशन हाई हो रही है। Yes, absolutely. I also agree. इंग्लिश और मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक क्वांट्स के लिए ना थोड़ा सा आपको यू शुड बी मोर मतलब स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। आप अगर नहीं है इंटरेस्ट तो देखो 15 मार्क्स का आता है, बहुत सारे बच्चों से छोड़ देते हैं, डोंट लीव इट ऑल टुगेदर। पर मतलब मैं बस इतना कहूँगी अगले 1 साल में इतना करो कि आप कम से कम 8-10 मार्क्स लेके आ जाओ। मतलब यू डोंट हैव टू गेट 15 on 15। मतलब आई वॉज टॉकिंग टू AIR 96 दिस ईयर, शी वॉज टेलिंग मी कि उसके तो मैम मैंने पूरे साल मैथ्स किया और 2 मार्क्स आए 15 में से। तो दिस कैन हैपन विद यू, बट येस यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। तो आप अगर इतना भी करोगे ना कि आपके 5 मार्क्स आ गए तो भी आप टॉप 100 में आ सकते हो। तो आपको स्ट्रैटेजी सही रखनी है अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। और इंग्लिश तो ऐसा होता है, मतलब इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट नहीं होता। मतलब यू हैव टू रीड अ पैसेज कॉम्प्रीहेंडेड और उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो आप नॉवेल्स वगैरह भी नहीं पढ़ रहे तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब आई थिंक दैट विल बी इनफ। All right. So Chanda is asking, I was a CLAT aspirant this year. I couldn't crack it. I'm going for backups. I have 2 options: Christ entrance for BLLB and CUET to go to Delhi University. What do you suggest? Kesha sir, do you wish to take it? I mean, if it depends. Matlab, if she wants to do law, I would suggest Christ, because Yeah, same. DU mein to there is only 5 year, there is only 3 year law. Yes. There is no college which gives you a 5 year law wala, we could say option. But if she wants to do, I mean, something else, maybe BCom, BBA, or the other courses, then I would suggest DU surely. Matlab, Christ अगर आपको law करना है तो then I think Christ is a better option because you get that 5 year wala integrated law degree, which I think helps a lot. And they have But good I think placements as well. अभी तो Sorry? फिलहाल they are doing good. मतलब Christ placement wise is And also doing I good. think she's asking for a backup anyway, so I Yes, think yes. Christ is a good backup to have, and then she'll get more time to prepare also with it. Okay. So Madhu is asking how to cover backlog. अभी तो यार देयर इज नो बैकलॉग टू बिगिन विद हाँ। ना, अभी तो वी आर जस्ट इन द स्टार्टिंग। तो ये क्वेश्चन तो अक्टूबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो अभी जुलाई में दोबारा पेपर नहीं होगा। इफ एनी ऑफ यू हैज दैट थिंग इन माइंड, तो देयर इज नो पेपर अगेन, ठीक है? अब पेपर दिसंबर में ही है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देयर इज नो बैकलॉग गाइस। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक का पूछो मधु तो फिर आप वो पूछ लो। लीगल के लिए क्या करना चाहिए? सो इफ यू गाइस डोंट माइंड, शुड आई टेक इट?
Please, ma'am. ठीक है, तो लीगल रीजनिंग के लिए बल्लू आप कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर सकते हो. 5 आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं: कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, मिसलेनियस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ. इनकी आप क्लासेस कर सकते हो. साथ साथ लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती रहती है. मैं, केशव सर, दिव्य सर सभी लीगल रीजनिंग पढ़ाते हैं. तो आपको जिनकी क्लासेस अच्छी लगती हो आप उनकी क्लासेस आके अटेंड कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो. सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे अप्लाई करना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है. बहुत लोग बोलते हैं कि अब मतलब ये जो बुक्स रहती है जिसमें PYQs होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. पहले एक प्रिंसिपल के बेसिस पे फैक्ट्स पूछते थे, अब वही सेम फैक्ट्स पैसेज के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं. देयर इज नथिंग कि नहीं वो तो अब प्रिंसिपल बेस्ड था तो वैसा नहीं आएगा, वैसा आ सकता है. तो आप प्लीज़ ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा और उससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है कि आप उसको अप्लाई कर सको, राइट. एंड बाकी अपना दिल जो है वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए अगर लीगल रीजनिंग पढ़ना है तो, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है. So I think that is all for legal. I am unable to understand logical reasoning. Aryan is saying. लॉजिकल रीजनिंग अगर इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई वुड से कि इट्स वेरी कॉमन कि लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है. जो भी सब्जेक्ट हमने कभी पढ़ा नहीं है तो वो आएगा थोड़ी समझ में यार. लेकिन समझ में नहीं आया और समझ में नहीं आ सकता है उसमें डिफरेंस. इसके लिए यू विल नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. यू कैन कम एंड ज्वाइन मी इन माय स्पेशल क्लासेस या आप कोई अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हो और वहां पे यू विल फाइंड दैट वी विल डू लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. हम लॉजिकल रीजनिंग एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें गोलू अपने पापा से आईफोन मांगता है. अगर आप उतना समझ सकते हो तो उसमें हम असम्पशंस की बात करेंगे, स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे, वीकनिंग की बात करेंगे एंड यू विल थिंक लाइक गोलू. और इस बार लॉट ऑफ पीपल केम जो टॉपर्स थे और वो बोल रहे थे कि हम तो बस गोलू को सोच के गए थे एग्जाम में, गोलू की तरह सोच रहे थे. तो लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ सकता है. Golu is our guy. सॉरी, Golu is our guy. गोलू इज आता है. तो लॉजिकल रीजनिंग गोलू आपको समझा देगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. अच्छा, दिस क्वेश्चन आई थिंक ये बहुत बच्चों के पास है. अन्नू इज आस्किंग, मैंने सोच लिया है कि मैं ड्रॉप लूंगी बट मैं MHCT और SLAT भी ट्राई करूं या फिर सिर्फ क्लैट पे फोकस करना चाहिए. आई थिंक ट्राई तो कर सकते हैं. मतलब ट्राई करने में ऐसा होता है कि इफ यू गेट इट यू आर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कि मतलब कुछ तो आ गया. हाँ. ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ होता नहीं. तो आई थिंक ट्राई करने में देयर इज नो यू कुड से कोई हर्ज नहीं है. उससे क्या होता है कि जैसे स्लैट में और MHCT में जनरली सिलेबस काफी हद तक सेम है क्लैट से. तो आप एक बार उसको टारगेट करते हो तो आप आधे साल में सिलेबस भी पूरा कर लेते हो. तो एक मतलब वरना क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि हम काफी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट 6 महीने में अगर आप अपना सिलेबस काफी हद तक खत्म कर लेते हो फिर आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी. तो क्लैट के लिए इंप्रूव करने के लिए आपके पास और 6 महीने होंगे तो विच यू कैन डू रियली प्रॉपर्ली. Yes. बट मेरा सजेशन रहेगा इवन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड स्लैट डोंट फॉरगेट टू राइट क्लैट के मॉक टेस्ट आल्सो. मतलब साथ साथ अगर आप हफ्ते में एक भी लिख रहे हो दैट्स फाइन, बट हफ्ते में एक क्लैट का मॉक टेस्ट लिखते रहना ताकि आप उससे प्रैक्टिस में दूर ना हो. बिकॉज क्लैट MHCT का फायदा होता है कि टाइम इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. और most of the students that I feel, despite having you could say really good grasp over subjects, are not able to do well because they don't know how to manage time. तो वो एक स्किल है जो हम ड्यूरिंग दिस जर्नी सीखेंगे फॉर क्लैट 24 आल्सो. एंड आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. तो यस, यू शुड प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम आल्सो बट नॉट एंटायरली फॉर दैट एग्जाम. बाकी भी मतलब दूसरे क्लैट को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. इनफैक्ट एक और चीज हुई है कि सर कई सारे बच्चों हैं प्रद्युमन कि दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्फ कि क्लैट के मॉक दे रहे थे तो अच्छा स्कोर आ रहा था, अनअकैडमी की मॉक में स्कोर आ रहा था, दूसरों में आ रहा था, क्लैट वाले दिन पता नहीं क्या हो गया. और अगर आपने दूसरे एग्जाम देना है यू डू वेल इन इट तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार यू कैन डू वेल इन क्लैट आल्सो. वरना क्लैट तक 1 साल की बात है, दूर बहुत है. तो ये सेल्फ डाउट रहेगा कि यार मॉक में तो मैं हमेशा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरा एग्जाम डे अच्छा नहीं जाता है. तो वो वाले डाउट से भी आपको एक तरह से एक रियलिटी चेक मिलेगा. और व्हेन यू गो टू द एग्जाम हॉल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर होता है. तो you will get real time practice for everything and that is something that no other open mock or anything else can parallel. ऑल्सो अनु, आई थिंक अगले 6 मंथ्स में ना आप रियलाइज कर जाओगे कि आप क्लैट की प्रिपरेशन सही जा रही है या अपन ने ऐसे ही कर लिया. तो अगर आपका SLAT MHCT निकल जाए तो फिर यू कैन टेक दैट एज योर कॉलेज, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपकी क्लैट बिल्कुल फोकस जा रही होगी तो फिर आप क्लैट पे फोकस करना. तो दो पेपर तैयारी करो तो तब तक आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. चलो, ऑलरेडी इन फर्स्ट ईयर ऑफ HPNLU शुड आई गिव क्लैट इन December, हैव टेकन अ ड्रॉप ऑलरेडी. तो सेकंड ड्रॉप के लिए डू वी मतलब रेकमेंड? मतलब अगर सेकंड ड्रॉप के बाद में टॉप 5-7 मिलता है तो आई डोंट थिंक इट्स यू कुड से समथिंग दैट यू शुड लीव. बट अगर आपको लगता है कि यू आर अगेन गोइंग टू से टियर 3 NLU देन आई वुड सजेस्ट कि HPNLU में एक साल फिर वेस्ट मत करो.
बट हाँ, अगर आपको टॉप टियर एनएलयू मिलता है कोई, तो फिर तो चले जा सकते हैं, बिकॉज वहां पर वो एक साल डेफिनेटली अपने आप ही कवर हो जाता है. तो या आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड प्रिपेयर प्रॉपर्ली, बट उसको सीरियसली प्रिपेयर करो तो ही होगा वो. क्योंकि कॉलेज जाने के बाद एक बार क्या होता है कि यू काइंड ऑफ गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू काइंड ऑफ गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, so you don't get a time to prepare. मतलब even if you get it, you don't want to prepare because there are 100 things to do in college. तो अगर वो सब मैनेज कर सकते हो, then ideally yeah, you can prepare properly again and maybe write again. राइट. एंड इनफैक्ट सर जो सबसे बड़ी बात है कि एचटीएलयू जाने में अभी जुलाई है, आपको तो 6 महीने का समय मिलेगा. तो हाँ 6 महीने बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज मॉक मार्क्स, उस समय तक जो आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा. एंड वी विल बी हियर, यू कैन स्पीक टू अस एंड टेल अस अबाउट योर स्कोर. तब तक आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि अब एचपीएलयू में अगले 6 महीना कॉलेज को अच्छे से करना है या क्लैट को अच्छे से करना है, हमारा चांस बनता है. राइट राइट. ऑल्सो मनी माइट बी एन इशू, तो एक बार आप ये अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना, क्योंकि फिर 1 साल की तो आप फीस दोगे ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वंस यू गिव क्लैट यू वोंट गेट टू सेकंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन करते हो बेटा, अगर किसी को भी डाउट है ना. तो आप ये चीज भी थोड़ा माइंड में रखना कि वो इस साल की फीस जाएगी, है ना. बट आई थिंक अच्छी बात ये है कि क्योंकि क्लैट बीच में होते हैं, एक ही सेमेस्टर की फीस जाएगी, पूरे साल की नहीं जाएगी. तो अगर आपका क्लैट अच्छा हो गया दिसंबर में, तो आपको अगले साल की फीस भरने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी. हाँ मतलब अगले एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, तो कीप दैट आल्सो इन माइंड, मतलब थोड़ा सा एक वो. चलिए, तो थैंक यू रैंडम इज सेइंग यू ऑल थ्री आर बेस्ट एजुकेटर्स आई मीट इन माय लाइफ. थैंक यू रैंडम. व्हाई इज इट नेम रैंडम? मतलब व्हाई इज इट सो रैंडम? हाँ एग्जैक्टली. So he's saying random things here. Random things. Yeah. Although I agree with your random talk, but still. अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि आई हैव टेकन अ ड्रॉप बट स्टिल कुडंट क्रैक क्लैट, सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन बीएलएलबी क्राइस्ट और शुड आई जॉइन डीयू एंड देन मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन करके फिर लॉ करना 3 साल वाला. व्हाट शुड आई डू? 3 साल वाले में NLSAT has become a very good option for people now because NLS has got its this thing. But NLSAT ना मतलब it's like a छोटा वर्जन ऑफ एलेट की सक्सेस का चांस बहुत ही कम है. उसमें 12-15 सीट्स ही हैं अगर ऑल इंडिया वाला वो देखें. तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा रिस्क है. बट अगर आपको डीयू एलएलबी मिलता है या फिर आपको ये मिलता है तो इट्स गुड. आई थिंक इट्स बेसिकली हाउ यू टेक इट. आपको क्या करना है. लॉयर तो आप बन जाओगे. एनएलयू थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर देते हैं एज कम्पेयर टू डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ और एनी अदर कॉलेज. बट अगर आपको मान लो आगे जाके लिटिगेशन करना है या जुडिशरी करना है और बहुत ही श्योर हो आप, बट कई जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, we explored after going to college कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है because we had no legal background, so no understanding of the options. तो अगर आपके पास ये दो तीन है तो आई थिंक एनएलयू इज अ बेटर ऑप्शन. बट अगर आपको लगता है कि पहले से सेट है, पता है क्या करना है, तो आई थिंक 3 year LLB कैन आल्सो बी ऑप्टेड बिकॉज़ 3 year LLB में आपको 6 साल तो लगेंगे और 5 year में आपको शायद 7 साल लग जाएंगे बिकॉज़ यू आर टेकिंग दैट डबल ड्रॉप. तो अगर आप डबल ड्रॉप लेकर किसी एनएलयू में जा सकते हो, अच्छे एनएलयू में जा सकते हो, तो दैट इज मोर रिकमेंडेड एज कंपेयर्ड टू टेकिंग 6 years and doing conventional LLB. राइट. आर्यन कह रहा है केशव सर आई लव यू. So Keshav sir, I think your fan following has gotten to a point where there is no coming back. चलो अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड ऑल ऑन लाइट नोट गाइज. सो निकू इज सेइंग सबसे मेन थिंग ये है क्लैट 2023 से हम ब्रेक हो गए हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा. यार इसी के लिए नीकू, जो केशव सर ने शुरुआत में बात की थी कि ट्रॉमा को अब भूलना तो पड़ेगा. बिकॉज अब क्या कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अगले 3 दिन का और ब्रेक ले सकते हैं, 1 तारीख से फिर अपने क्लैट प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं. बट टेल मी दिस, अब क्या कर सकते हैं हम? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू अबाउट थिंकिंग अबाउट द पास्ट? अगर हम पास्ट को याद करते रहेंगे कि उस दिन क्या हुआ, वो 18 का काला दिन क्या करके गया हमारी जिंदगी में, कोई सेंस नहीं है. यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड. और द ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट इज बाय मूविंग फॉरवर्ड. मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इन लॉ स्कूल कि द ओनली वे टू गेट over a breakup is to date someone new. So probably to make a new plan is the best way of getting over a past trauma. Divya, I want to ask something. Let it be, ठीक है. ऐसा एक्सपीरियंस से आप बता रहे हैं या आपने अपने दोस्तों को देखा है? नहीं, ये तो एक जनरल है, मेरे को तो अभी तक ऐसा जरूरत नहीं. अच्छा फिर ठीक है ओके. ऑल्सो गाइज मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं एक चीज बोलती हूँ कि भाई या तो खुद चीज को चेंज कर दो जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है, इंसान हो या कोई भी परिस्थिति हो, वो बदल दो. अगर वो नहीं बदल सकते तो खुद को बदल दो. तो राइट नाउ यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैपेंड विद क्लैट.
So you can only change yourself. So get back, आप distract करो खुद को, आप MHCD के लिए prepare करो, next CLAT के लिए prepare करो, whichever you think is best, and get into it. मतलब कब तक आप परेशान रहोगे ना उस चीज़ को लेके. All right, best non-NLU for Keshav sir से पूछे, he must have gotten over something, no? So how does someone get over a What someone get over a trauma? ट्रॉमा? आई थिंक यार मतलब ट्रॉमा से उठने का तो यही तरीका है, मतलब आई तो टेक क्यू फ्रॉम रियली लाइक गुड पीपल. अभी मतलब सी जैसे आई थिंक टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ पर जैसे वी टॉक अबाउट ग्रेट प्लेयर्स लाइक तेंदुलकर, मेसी आल्सो, तो इन दोनों में एक बहुत ही एक कॉमन बात ये है कि दे वर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स. मतलब उनका अगर आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल स्टार्ट देखोगे तो दे आर दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड बाय फार. और मतलब वो आज से नहीं, मतलब पिछले 10 साल से मेसी और तेंदुलकर भी जब रिटायर हुआ था 10 साल से अपने करियर में वो बेस्ट था. बट 2003 में तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था और मेसी ने भी 2014 में हारा था. ये लोग 8 साल बाद जाके जीते थे. तो मतलब गुड थिंग्स टेक टाइम समटाइम्स, है ना? ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा यू विल गेट इट व्हाटएवर यू वांट. सो आई थिंक वो थोड़ा टाइम कभी कभी लग जाता है, तो दैट इज आई थिंक पार्ट एंड पार्सल. बट गिव योरसेल्फ सम टाइम, मे बी मतलब 1 साल ही हो सकते हैं. बाकी देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू डील विद ट्रॉमा, ओनली टाइम हील्स. लाइक कुछ चीजें तो सिर्फ टाइम से साथ ही जाएगी. तो अभी मुझे पता है कि लो फील हो रहा है, बट अगर आप उसको 1 महीने बाद अगर सोचोगे तो आई थिंक वो थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो फीलिंग चली जाएगी. तो इट्स फाइन आई गेस. वो नॉर्मल सा आप आगे बढ़ सकते हो अपनी उसको, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लेकर आप मतलब उसके साथ ही चलना पड़ेगा. यू हैव टू मेक पीस विद इट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव अहेड. मतलब भाई इट्स लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट यू हैड. अब वो टॉक्सिक को हटा के हमें थोड़ा सा फिर से यू विल हैव टू फाइंड समबडी न्यू. एंड दैट अगेन लाइक द क्लैट इज गोइंग टू बी योर buddy, and you have to be a little more कह सकते हो एक तरह से more dedicated towards it. हम लोग जनरली क्लैट को थोड़ा पढ़ाई की तरह लेते हैं कि मतलब कर रहे हैं, स्कूल में ऐसे करते हैं ना कि थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं. तो आई थिंक इट शुड बी यू शुड बी लिटिल मोर पैशनेट अबाउट द प्रिपरेशन कि यार मुझे करना है, मुझे निकलना है. मतलब हम लोग कई बार ये सोच सकते हैं कि what lies ahead, कि हम एक बार ये कर लेंगे तो आगे 5 साल कितना अच्छा हो जाएगा. सिर्फ वो 5 साल नहीं, उसके बाद भी कितना अच्छा हो जाएगा. सो 1 साल की मेहनत आई थिंक बनती है ऐसा कुछ करने के लिए. तो गो फॉर इट, यू गाइज आर डेस्टिन्ड फॉर इट. और ऐसा नहीं है कि एवरेज बच्चे नहीं निकालते. हर साल मुझे लगता है कि एवरेज बच्चे ज्यादा ही एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मेहनती होते हैं ज्यादा. उनको पता है कि हमारी एबिलिटीज एकदम प्रोडिजियस नहीं है, तो हम लोग मेहनत करके ही कर सकते हैं. तो ये एग्जाम वैसे ही निकलता है मेहनत करके. तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट. बेस्ट non-NLU for BLLB 5 years. Ma'am, I have to go. अच्छा ठीक है. All right guys, so Divya sir is leaving us. The betrayal. और he left. चलो कोई बात नहीं, it's okay, it's fine. So best non-NLU for BLLB 5 years, Keshav sir. Best non-NLU, I think it's for me it's either GLC Mumbai or SLS Pune. Same. I would say GLC Mumbai because GLC Mumbai में फीस कम है. हाँ, तो right. yeah. Absolutely. All right. So if you think that you can get into top 3, then of course yes. Tips for RC section would be like read the passage properly. Make sure कि आप जो अपनी mistakes कर रहे हो वो repeat नहीं कर रहे. न्यूज़पेपर डेली पढ़ो. मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. मैथ्स के अलावा चारों सेक्शंस में काम आता है न्यूज़पेपर. करंट अफेयर भी इंप्रूव होता है, आपका रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होता है. अगर कुछ मुश्किल पैसेज आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका भी आ जाता है कि हमें कितना टाइम लगता है. तो जैसे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने बात करी तो वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू कैलकुलेट वर्ड्स पर मिनट. तो वर्ड्स पर मिनट मान लो आपका शुरू में 100 है या फिर 80 है, तो उसको बढ़ाकर यू कैन ब्रिंग इट अप टू मे बी 150, 160, 200. तो उस पर काम कर सकते हो. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक रफली अगर मैं बताऊं, इन एवरेज एक पैसेज करीब 300 वर्ड्स का आता है, 350 का आ सकता है. तो अगर आप उस पैसेज को 2 मिनट में पढ़ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो. बट अगर आपको पैसेज पढ़ने में 3.5-4 मिनट लग जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो. Absolutely. Tamanna is saying I'm getting NLU Sonipat. I want to give CLAT 2024. Should I prepare it fully or prepare it with NLU Sonipat? If money is not a problem, you can prepare it with NLU Sonipat because आपको एक सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी. तो वो करीब 1 लाख के आसपास होता है रिस्क. I think. मतलब time will also be restricted, right? These guys will be having some moods and everything. फर्स्ट ईयर में आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में तो मूड नहीं होता, वो दैट ऑप्शनल होता है. आई मीन क्योंकि एक ही सेमेस्टर हो पाएगा ना. जुलाई से अगर सेशन शुरू होगा तो दिसंबर में तो वापस एग्जाम आ जाएगा. तो क्लासेस थोड़ा जाना पड़ता है क्योंकि वो 70-75% अटेंडेंस रखनी पड़ती है. बट आई थिंक एक वो बैकअप रहता है तो थोड़ा डर कम रहता है. आपको थोड़ा सा बहुत एंग्शियस नहीं फील करते एग्जाम के बहुत ज्यादा क्लोज.
राइट तो ले सकते हो। आई थिंक मतलब एनएलयू सोनीपत लेकर प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्सो अभी तो 6 महीने जाना ही नहीं है, तो अभी 6 महीने पहले प्रिपेयर खुद करो को आप बहुत क्लैट के लिए फन घर होना पे वो बैठ टाइम के, पे, या फिर आपको ज्यादा डेफिनेटली। और समझ में आएगा कि लेना है कि नहीं कॉलेज के साथ. एग्जैक्टली। अच्छा, गरिमा इज सेइंग आई मीन 11th कैन आई गिव क्लैट इन 2024. आई थिंक इन्हीं के लिए है ना क्लैट 2024. तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रेशर हो गरिमा गए उस इट इज टाइम फॉर में। यू ओनली. प्लीज तो गिव द क्लैट एग्जाम. एक्चुअली वो होता है जो 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स 2024 जो 12th में देगा, या 12th जो 2024 में देगा उनके लिए होता है वो मतलब एग्जाम। बट हाँ, यू कैन ड्रॉप इट एंड आल्सो डू इट। तो मतलब या द पर्सन हु आस्क्ड जस्ट नाउ इज डेफिनेटली द पर्सन गोइंग टू गिव इट फॉर. एलिजिबल। या या All right. Okay. I am. अच्छा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी कहाँ से शुरू करूँ? मैं ड्रॉपर हूँ, सब सिलेबस कंप्लीट है, तो क्या करूँ? सिलेबस तो आई थिंक कंप्लीट सिलेबस कुछ होता नहीं है ना। और मैं भी वेरी ऑनेस्ट है कि सिलेबस शायद कंप्लीट नहीं है ना। अगर सिलेबस कंप्लीट होता तो यू वुड हैव परफॉर्म बेटर इन दिस ईयर्स एग्जाम। तो वो आपको लग रहा था कि कंप्लीट है, बट वो कुछ कुछ गलतियां तो है। तो वो गलतियां फिगर आउट करो पहले कि कहाँ पर रह गया है। हो सकता है सिलेबस कंप्लीट हो, ये एग्जाम वो अगेन वो बोर्ड एग्जाम नहीं है ना कि सिलेबस कंप्लीट और जाके लिख दिया। यहाँ पर बहुत स्पीड मैटर करती है, एफिशिएंसी मैटर करती है। तो आई थिंक उन चीजों पर ध्यान दो जहां जहां आपकी गलतियां रह गई कि मैथ्स प्रॉपर्ली नहीं किया था एक आध। मतलब अच्छा क्लैट एस्पिरेंट वही है ड्रॉप ईयर में पर्टिकुलरली जो कि एक भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करे। आपने ड्रॉप लिया ही इसलिए कि आप अपनी गलतियों पर काम करोगे। Right. अगर आप अपनी गलतियों पर भी काम नहीं करोगे तो फिर सेम चीजें चलाओगे कि नहीं मेरा मैथ्स तो वीक है, वही छोड़ के 135 मार्क्स से पेपर करूंगा। तो फिर अल्टीमेटली वो एवरेज स्टूडेंट बन के ही रहोगे। मतलब मैं तो कई बार यही बोलता हूँ कि जो भी काम करो ना उसको ऐसे करो कि अच्छा करो। मीडियोकर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो अगर कर रहे हो तो ढंग से करो। मतलब अगर चाय भी बनाना सीख रहे हो तो मतलब कोशिश करो कि प्रधानमंत्री बन सको। सही मतलब बात है. यू हैव टू काइंड ऑफ एस्पायर बिग टू बी एबल टू रीच देयर। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि मेरे को मतलब टॉप एनएलयू में जाना है, जैसे मैं कई बार कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच देखता हूँ कि बस एनएलयू मिल जाएगा हम खुश हो जाएंगे। तो हाँ, प्रॉब्लम होती है फिर एनएलयू भी नहीं मिल पाता क्योंकि आपकी रैंक का टारगेट ही 1500 का था। सही तो बात वो है. प्रॉब्लम होती है। Absolutely, I agree. Is Jindal worth it? जिंदल इज वर्थ इट बट जिंदल इज वर्थ टू मच। तो मतलब यू हैव टू काइंड ऑफ I like it. It's nice. हाँ, तो you have to kind of make that choice कि अगर money is not a problem, it's a very good college to go. Right. There are very Mock. like brilliant faculties there. Right. So Keshav sir, I think you also have a class. I also have a class. We'll quickly do some questions. Mocks कब से start करने चाहिए? When you start a preparation within 15 to 20 days. Right. Times of India newspaper recommended or not? No. नहीं. 6 months GK enough for Christ entrance or do we have to do whole years GK? नहीं, 6 months is fine if you do it properly. 8 लेके चल लो तो be safe. 8 to 6 to 8 months is fine. Okay. How is ILS Pune? ILS Pune is good. ILS Pune is pretty good, but मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली सिंस बॉम्बे में बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा होती है। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए दैट वन इज बेटर। मतलब GLC is better for me, but a lot of students are taking ILS before GLC these days because इनको पूरा कॉलेज का इकोसिस्टम है वहां पे, अंदर रहते हैं सब लोग and all of that. So I think it's a very good college. Right. जब नेक्स्ट 3 months अराउंड जब तक बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है उसके साथ कितने आवर्स प्रिपेयर करते हैं? Sorry, I didn't get the So question. there's a student who's preparing for 12th है उसका भी, तो अच्छा. she is asking कि अभी 12th भी देना है तो उसके अब वो क्लैट 2024 लिख रही होगी मतलब पूरी वाली. आपको जो मेजरली आपके मतलब वो लगते हैं ना फ्लॉज की, जैसे मान लो करंट अफेयर रह गया था या फिर कुछ प्रैक्टिस रह गई थी, तो रफली मतलब दिन के 2 से 3 घंटे आइडियली अगर आप निकाल पाओ रोज तो उतना टाइम ले दो, बाकी टाइम बोर्ड को दो और उसके टाइम फिर उसके बाद में यू कैन जस्ट क्विकली जंप टू द प्रिपरेशन एंड जस्ट डू दिस. Yeah. So guys, I think this was a great session. I hope this was helpful. Keshav sir will just a second. एक सेकंड ना, या सो एक सेकंड, आई एम सॉरी. तो यहाँ पर ना बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच टुमारो. ठीक है, हम लोग एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं जो कि हम लोग वी विल बी स्टार्टिंग, दिस इज द बैच वी टॉकिंग अबाउट. तो इसमें हम लोग सक्सेस एनएलयू इज द नेम, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो. तो अच्छी बात ये है कि इस बैच के लिए अभी देयर इज 29% ऑफ गोइंग ऑन. ठीक है, तो इसमें 29% ऑफ चल रहा है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली टेक इट. आई मीन 23% ऑफ चल रहा है, 29 तो स्टार्ट हो रहा है. So there is 23% going on right now because we're starting it from tomorrow only. Yes. तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इस बैच के साथ में. ठीक है, आई एम ऑल्सो देयर, कृति मैम इज ऑल्सो देयर, दिव्य सर भी है इसमें, एंड बाकी भी काफी सारे एजुकेटर्स हैं who will be guiding you for this exam. तो December 29 just tomorrow कल से स्टार्ट हो रहा है, so you can use the code of your favorite educator and start right away. राइट, इसके अलावा मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मतलब कर सकते हो इस पॉइंट पर, बिकॉज दिस बैच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू.
Yeah. So I think yeah, you should go ahead with it. And I think everybody knows about an academy के जो CLAT toppers रहे हैं इस साल. So we have I think थोड़ा सा authenticity बढ़ा है कि Yes. students know कि online coaching के साथ भी they can do really well. They can sit Yes. at their respective houses and Yes. start preparing. Yes. ठीक है. So we will be there to guide you all the time. So feel free to like secure a subscription and start preparing properly with us. Right. So thank you so much guys for joining us today. And मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप CLAT 2024 लिख रहे हो, LSAT, SLAT, MHCT, कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, अपना 100% प्रेपरेशन को दो. मतलब जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलो, वो अच्छा जाए बुरा जाए, इफ़ समबडी आस्क यू कि भाई तूने अपना 100% दिया था क्या, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू से येस. एंड उसके लिए यू हैव टू कवर क्लासेस, यू हैव टू कवर कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट. तो आप ये Right. मत सोचो कि अभी से मॉक कैसे शुरू करूँ, सिलेबस नहीं हुआ. सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा. करंट अफेयर्स तो लास्ट दिसंबर तक चलेंगे. तो सिलेबस विल नेवर एंड. स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट इन द नेक्स्ट 20 days अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, एंड गिव योर 100%. बाकी वी आर Sure. ऑलवेज देयर. केशव सर, दिव्य सर, आई, ऑल अदर एजुकेटर्स, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू. यू कैन कम इन आवर क्लासेस. हमारी फ्री क्लासेस भी होती है अनअकैडमी ऐप पे, तो यू कैन ज्वाइन देम बाय यूजिंग योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड. यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, गो टू द CLAT category, and you can join our classes, and you can ask on the question tab, so it is easier for all of us to take your questions. So Correct. thank you so much guys. Okay. Bye. Thank you Thank so you, much ma'am. Keshav sir. Bye guys, Bye. take care.